लहर सिंह जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि कितना कोशिश किया था सरकार ने हाउस चलाने का, उसके बाद फिर सस्पेंशन होता था, आदमी समझ भी सकता था। 141 सस्पेंशंस, इट हैज नेवर हैपेंड इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है? जी, हम आपकी आवाज फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेरा सवाल सुना है, हाउस कितना सरकार ने चलाने की कोशिश की थी? देखिए, सरकार शुरू से ही ईमानदार रही है चलाने में। और जहां तक गृह मंत्री के बयान का सवाल है, तो गृह मंत्री आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर संसद में और जनता के सामने नहीं आ सकते। जांच, गहन जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी, पूरा खुलासा माननीय गृह मंत्री जी संसद में और बाहर भी करेंगे। एक बात, और कांग्रेस जो है, इस तीनों राज्यों में जो करारी हार की वजह से कांग्रेस संभल नहीं पा रही है और कांग्रेस को हार पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जहां तक सदन नहीं चलने देने की बात है, तो ये हीट एंड रन वाली बात है। उन्होंने कभी अडानी के मुद्दे को लेकर के, कभी मणिपुर को लेकर के, कभी ईडी के मुद्दों को लेकर के। ईडी के लिए कितना उन्होंने आंदोलन किया था, क्योंकि राहुल गांधी परिवार पर ईडी का पूछताछ चल रही थी, तो पूरा 20 दिन तक संसद नहीं चलने दिया। कितनी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस बातों को ज्यादा नहीं विस्तार में जाके एक और बात बताना चाहूंगा। कल जब मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी के साथ बैठा था, देवेगौड़ा जी कुछ स्पेशल मेंशन के लिए कुछ कर्नाटक की समस्या को लेकर के आए थे। वो इस 92 वर्ष की उम्र में बिना खाए पिए वहां बैठे रहे और इंतजार करते रहे कब उनका नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं आया। मैं यही वेदना मैं खरगे जी की भी समझता हूं। खरगे जी को ट्रैप कर दिया गया है और खरगे जी उनका कार्यकाल सफल नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस की चॉइस खरगे जी कभी नहीं रहे थे पहली चॉइस। तो जब खरगे जी को उनको मजबूरी में बनाना पड़ा, तो खरगे जी कभी इज देयर मोर एन एक्ट ऑफ अ डेस्परेट कांग्रेस व्हिच हैज lost recent elections and you were looking for an issue, you found one, and particularly what is being condemned here is that Rahul Gandhi was seen filming the mimicry or the act that was being done by the TMC MP outside parliament. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अमीबेन याग्निक। अच्छा जी। Maria, when an incident of the two boys jumping in the Lok Sabha from the gallery into the house and smoke coming out and such a security breach, if the honorable members of parliament want the honorable Home Minister to come and make a statement why there is such a breach of safety and security when this particular building, which is the Temple of Democracy, is considered to be the safest, and most of the country is represented here by the representatives, and not a statement coming out from the honorable Union Home Minister. Is it not fair that the members of parliament, whether it is one or all the members of parliament sitting there in the opposition, ask that why is not the Home Minister coming and making a statement? He is not the investigating agency himself that he has to inquire, investigate, and then come up with a report. He just has to come and make a statement and tell the honorable the members of the parliament that yes, there has been a breach. We are looking into it. But the moment you have asked for that, he doesn't want to come. You have seen before the adamancy of the ruling dispensation. Whenever there is a request from the members of parliament, it is never complied with. It was Manipur. We went on asking that the Prime Minister or the Honorable Prime Minister should come and make a statement. What's happening? You saw the viral videos that had gone. What about women's safety and security? It did not come. We went on asking, we went on filing the notices which are required under law, under the rules of the parliament procedures, but those notices were never entertained. And so whenever any member of parliament from the opposition requests for a discussion, requests for an answer, the accountability flies out of the window. Okay. They just don't want to come. They don't want to follow democratic. To ask that question to Lehar Singh, that is the government running away from discussion, as is the charge coming from the opposition parties. गिरधर यादव जी, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि ये क्या ऑपोजिशन एमपीज थोड़ा पेशेंटली हाउस में हैंडल कर सकते थे? नया संसद है, इसमें नए तौर तरीके हो सकते हैं। इस तरह का प्लकार्ड दिखाना और बाहर में वाइस प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाना सही है क्या?
आपको हम बता रहे हैं 141 एमपी को इन्होंने सस्पेंड किया। 141 एमपी के पास प्ले कार्ड नहीं था, मुश्किल से 20, 30, 25 के पास प्ले कार्ड होगा। ये नया संसद भवन बनाया है, तो नया संसद भवन में ने सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद कह रहे थे कि सम्मान्य गृह मंत्री जी कैसे बयान देंगे आधे उधर। प्रधानमंत्री जी तो बाहर में बयान दे ही रहे मीडिया में। सम्मान्य प्रधानमंत्री ने मीडिया में इन सारी बातों को रखा। वो इस देश के लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा की महत्ता खत्म करने का प्रयास आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब हाउस सेशन में है तो सम्मान्य प्रधानमंत्री, सम्मान्य गृह मंत्री को बाहर बयान नहीं देके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देना चाहिए, और उन्होंने नहीं दिया। और जितना ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र को समाप्त किया जाए, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए, इसी प्रयास में लगे हुए। और जो नया संसद भवन इन्होंने बनाया, कुछ संसद भवन ये गोल घर है, पटना में एक गोल घर है, उसी तरह एक गोल घर बना दिए। जब गोल घर में घुस गया आतंकवादी, ये तो कहते हैं बाकी गुलामी का प्रतीक है, ये इनकी आजादी के बाद इन्होंने बनाया, उसके बाद घुस गया। गिरधर जी, इस पे बता दीजिए कितना मजबूत व्यवस्था के बाद कैसे है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीजी सीआरपीएफ जब अपना पूरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब लोकसभा स्पीकर सबको बता देंगे। कुछ दिनों की बात है, इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं सांसद? सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने अभी दैनिक जागरण के बयान जो प्रेस किया था उसमें पूरी बात को रखा, नहीं रखना चाहिए था ना। आधा अधूरा बात ये भी करते हैं, वहां रख रहे हैं सम्मान्य प्रधानमंत्री, हाउस में नहीं बोल रहे हैं। ये तो इनका दोहरा चरित्र है ना। आरएसएस और बीजेपी का दोहरा सदस्यता भी है और इन लोगों का दोहरा चरित्र भी है। लेयर सिंह, यू हर्ड फ्रॉम द एमपीज, एक ये भी कहा जा रहा है, मैंने पूरा सुना है, मैं पूरा मेरा सवाल सुन लीजिए। जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये 141 एमपी सस्पेंड नहीं हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को सस्पेंड किया है सरकार ने, डेमोक्रेसी को सस्पेंड। देखिए, ये अंतिम कदम चेयरमैन को और स्पीकर महोदय को बहुत मजबूरी में उठाना पड़ा है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कल मेरी चिदम्बरम जी से भी बात हो रही थी, तिरुचि शिवा वगैरह जैसे कई लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, सब चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दलों की राजनीति कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो नारेबाजी में विश्वास करते हैं, अराजकता फैलाने में विश्वास करते हैं। उन्होंने पार्टी को कैप्चर कर लिया है और खरगे जी को लाचार कर दिया है। दिग्विजय सिंह सब लाचारगी से बैठे देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग तत्व उनको हैंडल कर रहे हैं कि शिव मोटो कुछ खरगे जी बोले, उसके पहले उनके कुछ जो नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ जो पार्टी के दूसरे लोग हैं जो राहुल गांधी जी के इशारे पर चलते हैं, वो शिव मोटो कुछ न कुछ कह देते हैं। ये संसद नहीं देने चलने के पीछे सब इंडिया पार्टीज के भी एमपीज थे। आप तो ये नहीं बोलेंगे ना कि टीएमसी के जो एमपीज हैं वो भी राहुल गांधी के इशारे पे काम कर रहे हैं? देखिए, सब कुछ एक साथ गुट बन चुका है। सब पार्टी के दो तीन लोग हैं जो नेगेटिव राजनीति करते आ रहे हैं। 2 वर्षों से मैं लगातार संसद में देख रहा हूं, हर बात पर जैसे ईडी का मुद्दा उठाकर 15-20 दिन संसद नहीं चलने दी, अगले अधिवेशन में ईडी का मुद्दा गायब था और अडानी लेके आ गए, फिर अगले संसद में मणिपुर लेके आ गए। तो उनको कोई बहाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास तैयारी नहीं है, आइडिया नहीं है, सुझाव नहीं है, और सरकार को how multiple sessions of parliament was suspended, the parliament did not function in the from 2014 to 2019. At that time Rahul Gandhi had raised the issue of Rafale. You went into elections with that issue as well, and we know what happened. It did not really click with the public on ground because they were looking at much more substantive issues. Again, is this an issue that you think you can take to the people of this country? See, this issue pertains to the people of this country because this country believes in a democracy. The democratic processes have to be followed, whether they are any system, whether it's administrative system, legislative system, or the executive. And that is why when we are in a democracy, we have to follow the rules. And in that rules, there is accountability. And if that accountability is not to be given by the ruling dispensation under whatever pretext,
everything to be blamed on the opposition leaders. And I'm very, very surprised that a senior person is talking about there is Gutbaji and 2 persons are listening and 3 persons are listening. I think everything is being shown on, is being aired, and you should see that everyone was requesting the honorable chairperson to give a chance to the leader of opposition to make his submission on behalf of all the opposition parties. What is this kind of, understanding which is being told on the television? I think that rule, under the rule which the notices were given, none of the notices were entertained. Under what subject the notices were given, that subject was not mentioned by the honorable the chairperson, and that is why everyone said that from their own seats that, sir, please hear us. And if not hear us, please hear the leader of opposition. So what is wrong if we ask for the fair share in the democratic processes? Absolutely. Why it is that only one side should be heard, and Yes. why is the BJP silent now on how that they know? all you- No, most one of the minute. MPs, ma'am, No, 1 minute. yes, one okay, minute. go ahead, ma'am. Why is the BJP not telling that the last session they got up at 11 o'clock sharp and disturbed the session and did not allow the house to function? Okay. That cannot be some kind of a selective way of putting Okay, so points it's forward. outrage versus outrage, and pretty adamant positions. No, which it have is been it is a request. It is a request Lair Singh to ji, follow the democratic you processes have of the country. brute majority देखिए- in both the houses देखिए, of parliament. याग्निक जी को- Could there have been magnanimity shown by the government? Why suspend MPs? याग्निक जी No, की बहुत I'll समझ remind में- you of history, sir. When last time, 1989, याग्निक- when MPs were suspended, the suspension was revoked a day later. And it was business as usual. MPs returned after they apologized. Here, you have suspended them, and there is no sign for even them to go for any kind of redressal or review. देखिए, संसद में मैं नया आया हूं, लेकिन जितने मैं जानता हूं कि संसद में हमेशा परंपरा रही है कि क्वेश्चन आवर के बाद ही कोई इश्यू उठाए जा सकते हैं, और हर बार ये रहा है कि सरकार ने कहा है मणिपुर वाले मामले पर भी हम बयान देने को तैयार है क्वेश्चन आवर के बाद में, क्योंकि हम ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहते। क्वेश्चन आवर जो है पूरे देश के से जो एमपी आते हैं उनका एक हक बनता है कि सरकार को प्रश्न पूछने का, लेकिन कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है और कांग्रेस को इस बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या होना चाहिए। सांसद नहीं है तो आप लोग फिर चला लें 3 दिन, जो भी बिल्स है वो पास करवा सकते हैं आप। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। डिबेट होनी चाहिए थी। हम चिदम्बरम जी जैसे को, तिरुचि शिवा जैसे लोगों को, जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, उनका इन पर चर्चा में सुनना चाहते थे हम। लेकिन ये जो जिस तरह से कांग्रेस और जो विपक्षी दल, एक और बात बताऊं आपको, ये जो परसों जो घटना हुई है उसके पीछे मैं बताऊं आपको कि ये कुछ राजनीति में कुछ अर्बन नक्सलवादी तत्व जुड़ गए हैं जो मैसूर से आसपास में है। सुनिए, गिरिधर यादव, of course we'll see what happens in parliament tomorrow. 3 more days for this session to end. That's all from me. Thanks so much for watching.